Hello students, today's topic is electric dipole. First let me explain what is an electric dipole. To equal and opposite charges. To equal and opposite charges. And opposite charges are kept at a short distance apart. अब देखने कौन सा भी टू चार्जेस लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए एंड sign will be different. Suppose here I am saying one is the plus q and one is the minus q. Plus q and minus q. So definition is two equal and opposite charges are kept at a short distance apart. Here I have taken the two charges q और q, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है. देखें ऑपोजिट चार्जेस, सो आई टेक टू ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. इक्वल मींस दैट मैग्नीट्यूड्स आर बराबर एंड साइंस आर ऑपोजिट. ओके, दिस बोथ आर सेपरेटेड बाय short distance. This can be taken as a 2a. So now all the books they have take the distance between minus q and plus q, 2a. Okay, so I am also taking the same thing only, 2a. So that is the definition of the electric dipole. What is the electric dipole? We say two equal and opposite charges are kept at a finite distance apart. So that is called as an electric dipole. दोनों का साइन कैसे होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एंड इधर बिटवीन डिस्टेंस हमने मान लिया 2l2. Okay, this is the electric dipole. Now before that, why we need to study electric dipole? Electric dipole. First I have explained what is the electric dipole, then I am explaining why we need to study electric dipole. तो सबको पता है, सो कौन सा भी मैटर मान लेना, मैटर प्लस मटेरियल. सो मैटर प्लस मटेरियल will be made up of molecules. Again, these molecules are made up of dipoles. Okay, we can take the any matter also material is made up of molecule. Then these molecules are made up of dipole. Suppose you can take here example, here one example NaCl. Let take it NaCl. An example here I am writing it NaCl. That's Na plus Cl minus, Na plus Cl minus. So you can see these both are one is the positive charge, one is the negative charge. These both are separated at finite distance. Then this is called as what? Electric dipole. Now to study about, suppose you can take the matter. Suppose I have taken the NaCl, common matter, others having one substance. Big means so like one big substance I have taken. Now that substance completely made up of NaCl molecules. Again, these molecules are made up of the dipoles. Okay. If I want to study electric field, otherwise potential. If I want to study electric field, otherwise potential of this matter, you know, you can take the complete matter and you can use the dipole. Now, what will be the electric field of dipole?
and what will the potential of the dipole? Same will be the matter. Matter का भी A होगा. Suppose हम find out करें dipole का electric field, okay, and dipole का potential हम find out कर रहे हैं. नहीं तो अब dipole को किसी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अदरवाइज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं. रखेगा तो क्या होगा, ठीक है. एंड ये डाइपोल के साथ क्या होगा, सेम होगा मैटर के लिए. सी ऑल से हम पढ़ाई करना है डाइपोल डाइपोल्स, क्लियर, इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द मैटर्स, ठीक है. मैटर्स आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द डाइपोल. हम डाइपोल के बारे में पढ़ाई करेंगे तो सो ऑटोमेटिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज से डाइपोल का एप्लीकेबल होगा, ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी एप्लीकेबल फॉर द मैटर्स. अब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का मींस कोई ना कोई जगह में रखे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, देन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, एंड अदरवाइज यू कैन गिव द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके साथ क्या क्या होगा डाइपोल का means same will be happen in the case of the matter also. That's why we need to study the dipole. It is clear. And see one more example. S2 two negative oxygen के पास and one hydrogen plus and this side also hydrogen plus. Now this is one dipole and this side also another dipole. If there are two dipoles, okay, if there are two dipoles means there are means already we know the dipole. Dipole is what electric dipole we will study now. Electric dipole is a vector pole. First we will define this is the what is the electric dipole. Okay, this is electric dipole. Now what is the electric dipole moment? Electric dipole moment. Before I will explain the electric dipole. First I have explained what I have explained electric dipole. Electric dipole is what I told. Two equal and opposite charges, we have to keep a shorter distance apart. Then the system is called as an electric dipole. Clear? And what is the electric dipole moment? Electric dipole moment. Electric dipole moment. Now say this is a minus q and this is the plus q. And दोनों का बिटवीन डिस्टेंस 2l to l. Clear? Now electric dipole momentum, it is the magnitude of the electric dipole momentum. P is equal to product of either charge. Either charge we are saying means that दोनों का magnitude बराबर है. You take the any charge multiplies distance between the both the charges to l. Clear? This is the magnitude of the electric dipole moment. लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन में देखना वेव P बॉट इज इक्वल टू नाउ हियर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं Q multiplies L1. This is the electric dipole moment. Electric dipole moment. Clear? What is the electric dipole moment? Means the product of either charge. Okay, where either charge means that both the charges are equal, magnitudes are barabar, and distance between them. Clear? And what are the units? If you write the units of this electric dipole moment, units you can write. This is the charge of electron, coulomb we can write, and this is the length means coulometer. Don't we can see this is not a centimeter, this is a coulometer. Clear? So units of electric dipole. Clear? What's the electric dipole? What is the electric dipole? You say two equal opposite charges are separated at a shorter distance apart. That is called as the electric dipole. That is called the electric dipole. And what is the electric dipole moment? Electric dipole moment P is equal to the product of either charge multiplies the distance between the both the charges. Clear? That only I have explained this is the magnitude of vector form में लिखेगा तो ऐसे लिख सकते हैं. Now what are the units of the electric dipole moment? The coulometer. Charge का unit होगा coulomb and length का meter coulometer. Okay? Now so this is we are studying now. So I was explaining going to study the what is the need to study the dipoles, electric dipoles. Electric dipoles क्यों पढ़ाई करें तो केमिस्ट्री में भी आएगा.
लेकिन फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्या why we need to study this electric dipole means you can take the any material, whether it's matters, other materials are made up of the molecules. Now again all these molecules are made up of the dipoles. Now you don't need to, suppose you want to give the you want to test this matter. Suppose you want to test this matter to keep in an external electric field. Suppose when you want to do an experiment, that means that this matter you want to keep an electric field. Then you want to find out what will happen with this matter. Okay, but you don't need to take that means sometimes the materials may be very bigger one. So you don't need to take the complete material, but you just take the dipole. ठीक है, डायपोल के साथ अब एक्सपेरिमेंट करके देख लेना डायपोल के साथ क्या क्या होगा. all the things will be happen to matter also. That's why you need to study the dipole. This is the example. When I say and here suppose you take H2O, there are two dipoles. This one and P1. This side ऐसे देखा सकता है देखो P1 this side ना P1 dot and this is the P2 dot. Both are the vectors होगा तो if only one vector is there is no problem. And हमने 11th class में पढ़ाया किया था how to write the two vectors. Both are in the same direction. Observer से write कर सकते हैं लेकिन these both vectors are not in the same direction. ठीक है, both are not in the same direction. तो कभी कुछ एंगल बना रहे. Now क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? Net means in between. P net will be in between. P net फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. अब एक ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं. ऐसे कभी दो भी आ सकते दो में तो आएगा तो मोर देन वन आएगा तो क्या करेंगे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ this electric dipole? So this is the minus q and a plus. Clear? Now the direction of the electric dipole moment will be from negative to positive, negative charge to positive charge. That means that this is the direction. Now we can show like this. This is the direction. This is the direction of P. This is the direction of the P. Direction from where to where? Dipole moment का direction होगा negative charge to positive charge. Negative charge to positive charge है. This is the electric dipole. This is introduction. So after that. Now ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो क्या होगा? मींस दो केस में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब दो डेरिवेशंस हैं, उसको बाद टॉप का एक डेरिवेशन आएगा. तीन डेरिवेशंस हम आज देख लेंगे. ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल I have explained what is electric dipole, then electric dipole moment, and what is the direction of the electric dipole moment, and what are the use of the electric dipole moment formula, and why we need to study this electric dipole. This is all the concept I have explained. Clear? Now हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं. ठीक है, sometimes can write we study electric field and sometimes electric field intensity. दोनों same things हैं. Clear? Electric field intensity electric field or the electric field intensity due to electric dipole and electric dipole. Okay, हम फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए देयर आर थ्री डायरेक्शंस आर देयर. लेकिन आपका सिलेबस में केवल दो डायरेक्शंस हम दो मिक्स करते हैं. पहला फर्स्ट वन on the axis of a dipole or इस
इसको ऐसे भी बता सकता है। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। अब पहले इसमें दो डेरिवेशंस हैं, हम फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की उनका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए दो डेरिवेशन है। फर्स्ट डेरिवेशन इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मैं तो इसको लिखता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख देंगे। एंड एन पोजीशन, अदरवाइज इसको एक्सियल, एक्सियल इसके कोई सा भी टर्म हो सकता है। अब देखना से डायरेक्टली सीधा सीधा सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, अदरवाइज देंगे सीधा एंड एन पोजीशन नहीं तो एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक तीनों का कोई भी पूछने देना आप एक ही डायरेक्शन में। क्लियर, अब ऐसे भी देखें ऑस axis of the dipole, otherwise end position, otherwise axial position. Clear? So here first I am taking the dipole. Take the one dipole. Dipole means minus q plus q, and these both will be separated at a sharper distance. That is a 2a, and this is the midpoint. Midpoint. अब total यहाँ से तक 2l हो, तो total distance 2l है, तो midpoint वो होता है, तो midpoint वो तो एक तो एक l होगा, एक l होगा, l plus l 2l। so हम मान के अब देखो सब लोग दोनों को between distance 2l मान के डेरिव करेंगे हम only a 2l। तो दैट total distance 2l हो, तो हमने क्या लिया था midpoint हो, तो क्या होगा l plus l कितना होगा 2l। And axis means already I told that the line joining of the two charges. Line joining of the two charges is called as what? Axis. अब देखें ये होगा axis, हाँ? अब इसे axis पे हम टेंगे one point P है। Clear? So minus q is kept at A and plus q is kept at B. Minus q kept at A and plus q kept at B. So this is the axis. Axis पे center of the dipole से small r दूरी पे, clear? From the center of the dipole axis पे एक point हमने select किया था, that point is P. On axis I have taken one point P, which is at a distance of smaller from the midpoint of the dipole, clear? कल हमने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेना पहले कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था कूलॉम्स रूल से हमने क्या एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to K Q1 r²। ठीक है, अब फोर्स कितना चार्जेस पे हो सकता फायदा हो रहा है 2 चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अब कितना चाहिए तो हम कितना चार्जेस से 2 चार्जेस से, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो E is equal to KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना चार्जेस है, केवल एक ही चार्ज चाहिए, एक ही चार्ज होगा तो उसकी वजह से क्या आपको फायदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी प्रोड्यूस। क्लियर? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के दो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना के लिए हमको केवल एक ही चार्ज चाहिए। क्लियर? हमको एक ना हम क्या फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हियर हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, 2 चार्जेस आर देयर, one is minus q, one is plus q। if 2 charges are there means अब एक चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब 2 चार्जेस होगा तो 2 फील्ड्स होगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा, one is the minus q, one is the plus q। अब प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एंड माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखो माइनस q हमने कहां रखा, पॉइंट A पे रखा, मान लेना माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये सफिक्स A, ठीक, माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फायदा हो रहा है, सो हम ऐसे मान रहे हैं u सफिक्स A। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा देखो, इसके लिए हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन किया था। इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक
electric force of lines, electric field lines, they will be moving away. They will be moving away from the positive charge. Positive charge also, they will be moving away from the positive charge. If it is a negative charge also, so they will be coming. They will be coming towards the charge. Towards the charge. Okay. Yesterday I explained this property of the this property of a याद करना पड़ेगा. ये एरो हो तो उसका डायरेक्शन आराम से दे सकते हैं. ठीक. फर्स्ट देखिए माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ आएगा? चार्ज पर आएगा. देखिए ना माइनस क्यू रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? चार्ज के पास में आएगा. टुवर्ड्स द चार्ज आएगा. ठीक है. टुवर्ड्स द चार्ज में से ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं. लेकिन हमारा एक पॉइंट हम सेलेक्ट किया था, वो पॉइंट कहाँ है देखना पड़ेगा. पॉइंट बी. ठीक है. अब देखना ये कहाँ से आना पड़ेगा? क्यों नेगेटिव होगा तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे शुड कम टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. लेकिन कहाँ से आना है? कहाँ से मींस इधर हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था. हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं. कौन सा पॉइंट पे? पॉइंट पी. दैट मींस दैट अब पॉइंट पी से ए पर आएगा. दैट मींस ऐसा है. दैट मींस ऐसा दैट मींस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ये का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. ये मींस एट पॉइंट ए पे माइनस क्यू रखा था. माइनस क्यू तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा. इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, अंदर घुसेगा. कहां से आना पड़ेगा? बाहर से ऐसा हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था. अब देखिए ना फिर से ऐसे अंदर आना है. दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. ठीक. एंड बी का क्या रखा था? प्लस क्यू रखा था. प्लस होगा तो अब देखना प्लस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे विल मूव अवे. दे विल बी मूविंग अवे. मींस ऐसे भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. लेकिन इधर हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? रेफरेंस पॉइंट है. तो आपका रेफरेंस पॉइंट एक मींस है इसी तरफ जाएगा. ठीक है. इसी तरफ. दिस इज द ईबी. क्लियर? सो वी गॉट द directions of electric fields. Directions of electric fields, that's the EA and also these are the directions. Okay. अब ध्यान से देखिए ना ये दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट है. इसे डायग्राम में ध्यान से देखिएगा तो दोनों का डायरेक्शंस both directions are opposite to each other. ठीक. And this both are the vectors. Electric field intensity is a vector quantity. अब वेक्टर क्वांटिटी में दो वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन हो तो ऐड कर सकते हैं. दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड कर सकते हैं. इधर दोनों ऑपोजिट में हो तो हम माइनस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस कैसे करेंगे? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. हमको कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा छोटा वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक. हाँ, the direction of the both electric fields. एक तो माइनस क्यू की ओर से ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड एंड प्लस क्यू की ओर से दैट्स ईबी राइट साइड. दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर. बोथ आर द ऑपोजिट. If only one electric field is there, that means that you don't need to find out the vector. More than one electric field means an electric field is a vector quantity. एक वेक्टर हो तो आप जोड़ने के लिए या तो माइनस करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. एक से ज्यादा वेक्टर्स होगा तो अब नेट निकालने के लिए आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. इससे प्लस नहीं तो माइनस करना पड़ेगा. ठीक. अब देखिए ना अब नेट निकालने के पहले हमने ये फाइंड आउट करेंगे, ये भी फाइंड आउट करेंगे. ये और ये इसके पहले हम ऑलरेडी फॉर्मूला दिया था. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना हमने ऑलरेडी आप लोगों का एक फॉर्मूला दिया. अब फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज k/r². अब क्या करना ऑलरेडी इसके पहले क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E = k/r². ठीक. सिमिलरली पहले हम लिखते हैं ये के लिए ये के लिए क्या होता है? k q माइनस लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है. माइनस जस्ट मैग्नीट्यूड लिखेंगे k/q अपॉन r² मींस है माइनस q से p
P तक कितना डिस्टेंस होगा -q से P तक। अब देखना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम कहां पर रखना पड़ेगा P at P where should the net electric field now A से P तक that is AP distance AP देखना है तो ये तक कितना है ये तो ऑलरेडी पता है यहां से तक कितना है R एंड बाकी कितना है यहां से तक कितना है L एंड टोटल डिस्टेंस कितना है R plus L कितना होगा R plus L हाउ मच R plus L सो A से P डिस्टेंस पे A से P AP हमको चाहिए ठीक है AP कैसे है देख लो AP आने के लिए तो A वैल्यू प्लस A वैल्यू दोनों को जोड़ेगा तो A पे आएगा A वैल्यू हमको पता है R एंड A वैल्यू भी पता है L एंड दोनों को ऐड करें तो L plus R plus R plus L R plus L के होल स्क्वायर ये ठीक है नेक्स्ट E भी फाइंड आउट करेंगे EB is equal to same formula KQ upon EB देखें ना EB means है ये तो हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ठीक है अब B से B में क्या रखा प्लस Q से तो व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस Q एंड दिस पॉइंट P means है ये होगा डिस्टेंस यहाँ से कैसे है लेकिन यहाँ से पूरा R है इसी पूरा से इतना हटाएगा तो देखो यहाँ से कितना है R से इतना वैल्यू हटाएगा तो आपको B मिलेगा दैट मींस है आप L हटाना पड़ेगा ये होगा R minus L के होल by saying this formula you can write this is the basic formula of the electric field intensity KQ upon R square same thing you are writing EA KQ and distance A से P तक distance R plus L whole square R square को लिखना पड़ेगा and second is EB KQ upon R minus L whole square इसमें दोनों में देखिए ना दोनों का न्यूमरेटर बराबर है KQ A लेकिन डिनोमिनेटर देखिए ना डिनोमिनेटर में A वैल्यू बढ़ेगा एंड A छोटा है न्यूमरेटर दोनों को बराबर है लेकिन डिनोमिनेटर में एक तो बड़ा है एक तो छोटा है अब इसमें कौन सा बड़ा होगा मतलब है जिसका डिनोमिनेटर कम होगा ये वैल्यू बड़ा ठीक है इसमें देखिए ना 4 by 8 and 4 by 2 दोनों देख लेंगे फ्रैक्शन दोनों का न्यूमरेटर तो बराबर है डिनोमिनेटर्स अलग अलग अब इसका वैल्यू कितना है 4 by 8 में से 1 by 12 इसका वैल्यू कितना है 2 आ रहा है दैट मींस 1 by 2 छोटा है 2 इज ग्रेटर वैल्यू दो फ्रैक्शंस से दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स बराबर है डिनोमिनेटर्स अलग अलग है इससे केस में आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा छोटा वैल्यू देन जिसका डिनोमिनेटर वैल्यू कम होगा r plus l और minus l इधर को जोड़ रहे तो बड़ा वैल्यू इधर माइनस करें तो छोटा वैल्यू दैट मींस ये डिनोमिनेटर वैल्यू कम है ये डिनोमिनेटर वैल्यू कम हो तो ऑटोमेटिकली EB is greater than EA okay so that EB is greater than EA magnitude होगा ठीक है magnitude wise डन अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक E net is equal to हमने क्या बोला था दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है E का डायरेक्शन EB का दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस आर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो उधर हम क्या करेंगे माइनस इधर बड़ा वैल्यू कौन सा EB और किस तरह EB माइनस EA माइनस E और रिप्लेस कर देना EB माइनस E EB is KQ upon R minus L की होल स्क्वायर माइनस K is KQ upon R plus L के होल स्क्वायर this is the E net this is the E अभी हम ऊपर लिखते हैं इसको ऊपर लिखते हैं सिंपलिफिकेशन इसको ऊपर लिखते हैं अब देखिए E net is equal to दोनों का मैं KQ कॉमन इसे कहते हैं KQ कॉमन after getting the KQ common then we can get that is 1 upon R minus L whole square then minus 1 upon R plus L whole square
अब इसको एक्सपांड कर सिंपलीफाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। A net is equal to K cube। अब इसको एक्सपेंड करके देखिए ना, r स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद इधर से पहला वैल्यू से 2rl एंड दूसरा वैल्यू से 2rl, 2rl plus 2rl 4rl एंड नीचे देखिए ना, दोनों का पावर बराबर है, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का पावर बराबर है, दोनों मल्टीप्लाई में वो दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा ऑब्जेक्ट होता है पावर वैल्यू, दैट मींस r minus l multiplies r plus l, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों की एक साथ पावर वैल्यू। देख नेक्स्ट, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मैं लेटर भी है k 2 q multiplies 2l multiplies r, देख तो देखना k is 2 to the 4 सही, and q l is 1। now okay, in denominator this is a minus b multiplies a plus c, a minus b multiplies a minus b, a square minus b square, ऐसे लिखते हैं r square minus l square की होल स्क्वायर, ठीक। बट ये आपको एक अजम्पशन मानना पड़ेगा इसी डेरिवेशन में, so here l value is much lesser than the, otherwise r is much greater than l। so l हमने बोला था very short distance, it means that 2l is very short distance, means अब l क्या होगा, बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, ठीक है। so मॉलिक्यूल है ना,